Okay, so open the same file that we have seen yesterday. Okay, otherwise this file, yes, you can take it from group also. So it's a VBA3 file. Okay, yeah, group से भी ले सकते हैं. So yes, in the last session, yes, we have seen some VBA commands. Okay, how to write the VBA command. That means how to merge, how to unmerge, how to set the alignment, how to set the border, then how to delete or insert the rows on the column, then how to create the worksheet, how to rename it. Okay, how to set the row height and the column width. Okay, then also we have seen the variable concept. Okay, then how to add the new workbooks and how to save these new workbook in a drive. Okay, so these are the some commands that we have seen. Okay, okay, so let's start now. So after that, okay, okay, now again open the same file. Okay, so go to the, okay, open the VBA3 file, then go to the developer tab and open the Visual Basic Editor. ओके, यू कैन टेक द फाइल फ्रॉम ग्रुप. यदि आपके पास फाइल नहीं है तो आप ग्रुप से भी ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. बट यदि आप ग्रुप से फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो उसे ओपन करने के बाद विल गेट द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज इनेबल कंटेंट. क्योंकि ये मैक्रो इनेबल फाइल है, यदि आपको मैक्रोज यूज करने हैं तो यू हैव टू क्लिक ऑन द इनेबल कंटेंट. देन यू कैन यूज द मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक. ठीक है, सो चेक इट. ओके, डन. ओके, ठीक है, सो नाउ we are going to see the another concept. Okay, so yes, we have seen the variable concept in the VBA. Yes, you can declare the variable. See how to declare the variable. Okay, that we have seen already. But ठीक है, फिर से एक बात देख लेते हैं. So actually, I'm using the variable. The variable name is the A. Okay, A is the 12th. Okay, so before using the variable, you have to declare the variable. See how to declare the variable. So I'm using the dim for the dimension A. Then I'm using the as here, and then dim A as an integer. इसका मतलब जो आपका आप वेरिएबल यूज करना चाहते हो ए, वो क्या बनेगा, क्या होगा, आपका इंटीजर होगा. So we can write the dim a as a text, dim a as a string, dim a as a double, dim a as a date, time. So just we have the different data types available in the VBA. This is the way to declare the variable. Okay, check this. Dim for the dimension, a is the variable name as integer. Integer is your data type. So in the VBA, we have the different data types. We have the integer, we have the double, we have the string, then you have the date and time, and then you have the different. और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं. ओके, वो फाइल ओपन किया आपने, सेम VBA3, इनेबल कंटेंट पे क्लिक किया. ओके, डेवलपर टैब. ओके, इन द डेवलपर टैब यू हैव द विजुअल बेसिक एडिटर, राइट. ओके, ठीक है, तो आई थिंक विल गेट दिस टाइप ऑफ विंडो. यहाँ तक हुआ था. ओके, देन वी आर गोइंग टू सी दिस कंसेप्ट. ओके, dim a as an integer, then a is equal to. देन आफ्टर दैट सपोज मुझे इस ए को एज अ मैसेज बॉक्स शो करना है, सो आई एम गोइंग टू राइट द मैसेज बॉक्स ए देयर.
and run the code. How to run the macro? So we have the run symbol here. Okay, click here. See, I got the 12 in a message box. Then press the OK. Okay, run the code and check. रिमेंबर यहाँ पे कैपिटल और लोअर केस कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटो करेक्ट कर लेगा। क्या हुआ? मैक्रोज डिसेबल बोल रहे हैं क्या? आपको वापस 365 हो गया? क्या यूज़ करते हैं, कौन सा वर्जन है? स्टूडेंट है ना, होना चाहिए। ओके, एक बार फिर से क्या करो, फिर से क्लोज करके ओपन करो, फिर से इनेबल कंटेंट पे क्लिक करो, ट्राई करो। तो डायरेक्टली न्यू फाइल क्रिएट करो। हाँ, डायरेक्टली न्यू फाइल क्रिएट करो और डायरेक्टली डेवलपर एंड द न्यू सी। Okay, directly create the new file, go over the developer, again open the Visual Basic Editor, and आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, insert in the model, insert in the and click on the model. ओके, मॉडल पे क्लिक किया तो आपको उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो सब, यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग। ओके, आपकी क्या देखो क्या होगी, सब होगी, सबके बाद आपका मैक्रो का नाम, सो आई एम गिविंग द मैक्रो 3, देन पैरेंथेसिस एंड एंटर प्रेस करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली विल गेट द आंसर। ओके, नीचे आपको एंड सब मिलेगा, जो भी कोडिंग करनी हो कहाँ पे करनी है, इसके बीच में करनी है, रिमेंबर, सो राइट दिस वन, इसके बीच बीच में आपको लिखना है। So by default integer की जगह मैंने देखा ना वो as above average दे रहा था, मतलब इंटर किया ना, हाँ हाँ, leave as above average। ऑप्शन बहुत सारे हैं, सिलेक्ट द इंटीजर, डन हुआ ये। कि रन द कोड, इसको आपको रन करना है। ओके, हाउ टू रन द कोड और द मैक्रोस, वी हैव द रन ऑप्शन हियर, ऊपर आपको एक रन ऑप्शन मिलेगा, सो क्लिक दिस, आई गॉट द 12 एज अ मैसेज बॉक्स। ओके, डन, डन। ओके, ठीक, check it, if you got the errors, just you can put errors in the chat box of the group. Okay, after that we are going to see, yes, we can use the if else here, जो if else का लॉजिक है, जैसे कि इन द प्रोग्रामिंग, यस वी आर यूजिंग द if else, बेस्ड ऑन द कंडीशन वी कैन परफॉर्म द सम टास्क। ओके, तो वो कंडीशन वो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, सी हाउ। ओके, सो फॉर दैट पर्पस हम एक काम कर लेते हैं, सो कम टू द एक्सेल फाइल। तो आपको करना क्या है, सो वी हैव द वन टू कॉलम, फर्स्ट वन द मार्क्स एंड सेकंड कॉलम इज द रिजल्ट। तो आपको कहीं पे भी मार्क्स और रिजल्ट लिखना है इन द एक्सेल। सो फर्स्ट इज द, सो आई एम यूजिंग द 45 हियर। ओके, तो अब मुझे करना क्या है,
इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, तो मुझे यहाँ पे पास लिखना है, अदरवाइज फेल। ओके, ठीक है, इसका मतलब वी हैव टू यूज द इफ एल्स। ये काम कौन करेगा? विवे करने वाला है। तो सीधे तो ऊपर का जो कोड है उसे कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। सो मेक इट कमेंट नाउ। ओके, सीधे। सो सी, सो आपको लिखना क्या पड़ेगा, आपका लॉजिक क्या होगा? सो यहाँ पे स्टार्टिंग होगी इफ से। सो व्हाट इज योर कंडीशन? मार्क्स। ओके, एक्चुअली मार्क्स तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वी हैव टू एक्सेस द वैल्यू। अब देखो मार्क्स कौन सी मार्क्स, ये मार्क्स राइट 45। ओके, तो व्हाट इज द एड्रेस? C3। ओके, इट्स अ C3 एड्रेस। सो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द रेंज। ओके, इन द रेंज वी हैव टू राइट द C3। डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू मतलब वहाँ पे क्या है? रेंज ऑफ C3 डॉट वैल्यू इफ इट्स ग्रेटर देन 40। ओके, इफ इट्स ग्रेटर देन 40, दे, अब यहाँ पे एक्चुअली देन है, प्रेस देन, आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे कि ओके नॉर्मली ईप होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? वी हैव द ईप एंड देन। ओके, मतलब ये कंडीशन है। ओके, जो रेंज C3 है, C3 मतलब इट्स सेल एड्रेस, वहाँ पे जो वैल्यू है, यदि वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके इक्वल टू भी यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। ओके, देन इसका मतलब होगा, अब क्या होगा देखो, इसका मतलब क्या होगा? सो आई एम यूजिंग द रेंज हियर। अब रेंज क्या यूज करना पड़ेगा देखो, तो यदि ग्रेटर देन 40 है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? फास्ट होना चाहिए। ओके, इट्स अ D3। ओके, इट्स अ D3। तो अब क्या करना पड़ेगा? इन द रेंज ऑफ इट्स अ D3 डॉट वैल्यू, और डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? D3 के अंदर क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी? पास। पास। पास इज अ टेक्स्ट, सो यूज द डबल कोट, राइट द पास। ये हुआ उसका इफ का ब्लॉक ऑफ। ओके, अब मुझे एल्स भी चाहिए। एल्स क्या होगा? वहां पे चला जाएगा, वही रे D3 वहां पे चला जाएगा फेल। दोनों में से एक ही होगा ना कंडीशन, या तो इफ होगा या एल्स होगा। ओके, इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इट विल गो फॉर द एल्स। ओके, और लास्ट में आपको एंड इफ लिखना पड़ता है। तो जो इफ एल्स लॉजिक है उसे एंड करना पड़ता है। ओके, या दिस इज द वे टू यूज द इफ एल्स लॉजिक इन द VBA। ठीक है, हम इसे रन करके देख लेते हैं, कुछ एरर मिलता है। ओके, एरर तो नहीं मिला है। ठीक है, चेक किया, यस आई गॉट द पास हियर। ओके, मुझे पास में, सपोज मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया। ओके, 30 डाल दिया, अब चेक करो, मैं इसे फिर से रन कर देता हूँ। रन दो, अगेन चेक इट, नाउ आई, यस आई गॉट द फेल। ओके, ठीक है, सो दिस इज द वे टू यूज द if else इन द VBA। ओके, देन के बाद जो कोड होगा, या इट विल बी द ब्लॉक ऑफ कोड फॉर द if, उसके बाद एल्स है, एल्स के बाद ये होगा एल्स का ब्लॉक ऑफ। बट इट्स कंपल्सरी टू एंड द if, उस if को आपको कंपल्सरी एंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आपका सेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज माय सेल एड्रेस, बिकॉज यहाँ पे मैंने C3 के अंदर वहाँ पे 30 या मार्क्स है। मे बी यदि आपके अलग है, आपका सेल एड्रेस अलग है, तो यूज से जो आपका है वही आपको यूज करना पड़ेगा। C3 and the D3, that's my cell address।
Okay, done. Got the check. Okay, ठीक है. So yeah, this is the way to use the if else. After that, yes, we can use the loop also. हम looping भी कर सकते हैं. See how to do the looping now. So we'll see the for loop. Okay, वैसे while loop भी है, but ठीक है. जो we are going to see just for loop. अब देखो for loop कैसे यूज करते हैं यहाँ पे. So for एक सिंपल सा कोड देख लेते हैं. X is any variable, x is equal to 1 to 10. इसका मतलब होगा आपका लूप कितनी बार चलेगा देखो. x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, 10 तक. ओके, इसका मतलब होगा आपका लूप चलेगा 10 टाइम्स. ओके, ठीक है. तो इन द 10 टाइम्स सीधा मैसेज बॉक्स, अब कोड क्या है, मैसेज बॉक्स इट विल शो द हाई. एंड देन उसके बाद कंपल्सरी आपको नेक्स्ट लिखना ही पड़ता है. नेक्स्ट मतलब लूपिंग के लिए x की वैल्यू 1 होगी, आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर से वो x की वैल्यू 2 होगी. ओके, इंक्रीमेंट के लिए. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द नेक्स्ट हियर. ओके, ठीक है. मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ऊपर का जो कोड है. अच्छा मतलब जैसे ऐड प्लस प्लस बोलते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है. ओके, यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट है, वो खुद इंक्रीमेंट कर देगा. तो इसका मतलब अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, नहीं. ओके, इसका मतलब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको जो हाई एज अ मैसेज बॉक्स 10 टाइम्स शो होगा. ओके, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 होगी, मैसेज बॉक्स हाई शो होगा. एक्स की वैल्यू 2 होगी, फिर से वही है. ओके, सीधा रन द कोड. यस, आई गॉट द हाई. ओके, प्रेस कर रहा हूँ, फिर से मिल रहा है, फिर से मिल रहा है. इसका मतलब विल गेट द 10 टाइम्स हाई. करेक्ट. यस. ओके, इट्स सिंपल. ट्राई दिस वन. सो विल गेट द मेज हाई 10 टाइम्स, क्योंकि आपका यहाँ पे लूप चलेगा 10 टाइम्स. कि फॉर x इज इक्वल टू 1 टू 10 ऐसे लिखना पड़ेगा. देन उसका उसका ब्लॉक ऑफ कोड होगा. देन एट लास्ट वी हैव द नेक्स्ट. नेक्स्ट मतलब इट इज यूज्ड फॉर द इंक्रीमेंट पर्पस. सो x की वैल्यू 1 होगी. ओके, ओके. अब क्या, कितने इटरेशन हो गए यहाँ पे टोटल, 10 इटरेशन. मतलब आपका लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है. फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, मैसेज बॉक्स शो होगा, इट शोज द हाई. उसके बाद एक्स की वैल्यू 2 होगी, फिर से मैसेज बॉक्स, इसकी वैल्यू 3 होगी, फिर से वही मैसेज बॉक्स क्या होगा, शो होगा. इसका मतलब आपका मैसेज बॉक्स 10 टाइम्स क्या होगा, शो होगा. फिर से वही बता रहा है माइक्रो जैसे किसी वेरिएंट बस
सिर्फ आप ही करना सेम से मैक्रोनिया में सेव एज मैक्रोनिया तब प्लान के लिए पैरालिसिस जो भी कोड है इसके बीच में मुझे लगा इंक्रीमेंट कर रहे बोले मतलब फर्स्ट टाइम हाई बताएगा, सेकंड टाइम दो बार बताएगा। नहीं वही कोड आपका क्या होगा मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगा मतलब वो हाई को कितनी बार शो होगा 10 टाइम्स सपोज इस हाई की जगह मैंने लिख दिया मैसेज बॉक्स एक्स अब क्या होगा एक्स फर्स्ट इटरेशन में एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 होगी तो इसका मतलब मैसेज बॉक्स 1 सेकंड इटरेशन में एक्स की वैल्यू 2 होगी तो मैसेज बॉक्स 2 ओके आई थिंक ये आउटपुट मिलना चाहिए ओके ठीक है रन द कोड या 1 2 3 4 5 6 7 9 and the 10 okay check this ओके ठीक है तो इसे हम कमेंट कर देते हैं ठीक है तो इसे कॉपी कर लेते हैं या तो आपको कमेंट कर देते हैं ओके अब मुझे क्या करना है सो आई एम गोइंग टू राइट सम लॉजिक हियर मैंने लिख दिया रेंज ऑफ सो ए मुझे तो सेल्स में ओके एक हमने सेल्स मेथड यूज की थी जहाँ पे मुझे रो नंबर और कॉलम नंबर पास करना है तो रो नंबर क्या होगा देखो रो नंबर विल बी द एक्स कॉलम नंबर विल बी द वन कॉलम नंबर कौन सा होगा ये फर्स्ट कॉलम रो नंबर क्या होगा एक्स अब एक्स की वैल्यू तो हर बार चेंज होने वाली है राइट तो आई एम यूजिंग द डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स तो मतलब आउटपुट क्या मिलेगा मुझे देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओके सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसकी हम क्या करें हर एक इटरेशन में आपका वो रो एक्सेस होने वाला है और वहां पे वैल्यू क्या चली जाएगी बोला मतलब वो एक्स की वैल्यू वहां पे चली जाएगी इसका मतलब होगा सीधा मैं इसे इस कोड को रन कर देता हूँ सो इन बिहाइंड द सीन एक्सेल के अंदर आपको क्या मिल रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो वही वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है इंसर्ट हो रही है एक्स सो विल गेट 1 to 10 ठीक है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं एक्स मतलब रो नंबर रो नंबर आपका हर एक इटरेशन में चेंज होने वाला है ओके वन इज द कॉलम इट्स अ कांस्टेंट तो वहाँ पे वैल्यू कौन सी चली जाएगी एक्स जो रो नंबर है वही वहाँ पे चला जाएगा ओके ठीक
Okay, done. ठीक है, so yeah, this is the way to use the for loop. Okay, now see how to use the formula now. अब विवेक के अंदर फॉर्मूला कैसे यूज होता है, तो इन द एक्सेल अब मेरे पास कुछ वैल्यूज है यहाँ पे देखो 1 to 10, मुझे इसकी समेशन चाहिए। ओके, समेशन आपको यहाँ पे भी या कहीं भी चाहिए समेशन, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन द वीबीए वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। ओके, नाउ सी हाउ टू यूज द फॉर्मूला। सो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द रेंज, पहले आपको रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो कम टू द वीबीए, सो व्हाट इज द रेंज, रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है आपकी, A1 से लेके A10। ओके, करेक्ट। नाउ यू कैन सर्च द फॉर्मूला। ओके, अब देखो फॉर्मूला के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, वी हैव द फॉर्मूला, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला R1C1। ओके, ऐसे अलग अलग आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ठीक है, आपको जो भी यूज करना है यूज कर सकते हैं। सो ठीक है, आई एम यूजिंग द सिंपल वन, फॉर्मूला R1C1। ओके, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज द फॉर्मूला R1C1। आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, फॉर्मूला R1C1। ओके, इज इक्वल, अब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला इन द डबल कोट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, डबल कोट, टू राइट द फॉर्मूला। और आपका जो भी फॉर्मूला होगा, यदि वो सम है या जो भी आपका फॉर्मूला होगा, ओके, बट यहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज डिफरेंट। मतलब ये फॉर्मूला आपको जहाँ पे चाहिए वो रेंज लेनी पड़ेगी। सो मुझे ये कहाँ पे चाहिए, A15 में चाहिए। A1 to A10 में होता डेटा, तो मुझे फॉर्मूला कहाँ पे चाहिए, A15 के अंदर चाहिए। एंड देन वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, then write the equal to, then write the sum formula, and in the sum formula we can select the range। तो आपकी रेंज कहाँ से होगी, दैट इज A1 to A10। ओके, then you have to select the formula that is A1 to 8, A1 to 8। ओके, लाइक दैट फॉर्मूला आपका कंप्लीट। ये फॉर्मूला का कोड भी ये 2 R1 से नहीं, ये एक्चुअली मेथड है, जैसे कि आप सपोज आप रेंज यूज कर रहे हो ना, रेंज। ओके, आपने यहाँ पे लिख दिया A15 दे। ओके, ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला यूज करने के लिए अलग अलग मेथड्स हो रही, फॉर्मूला है, फॉर्मूला 2 है, उसमें से एक है फॉर्मूला 2 R1C। ओके, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। ये सर डिफरेंट डिफरेंट मतलब इसके कुछ डिफरेंट होता है आप फॉर्मूला। थोड़ा सा अलग अलग, एक सिंपल फॉर्मूला भी है या फॉर्मूला R1C1 भी है। ओके, तो ठीक है, आप आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, ट्राई दिस। ओके, मैं सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, ये भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। You can write in this way. Okay, we'll check the code. Okay, run the code and see in the behind the scene. Yes, I got the 15 here. Okay, A1 to A10 जिस उसकी एडिशन मुझे कहाँ पे शो हो रही है, 15 के अंदर शो हो रही है। सो दिस इज द वे। ओके, राइट, यूज दिस वन। या आप सिर्फ डॉट फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली समेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इन द डबल कोड इक्वल टू मतलब फॉर्मूला होगा सम, सम किसकी होगी, A1 to 8। इसे हटा देते हैं, R1C1 वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जरूर, इट्स वेरी सिंपल टू यूज दिस। बट आपके पास A1 to A10 कुछ डेटा होना चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा, तभी उसकी समेशन होगी, और A15 के अंदर वो शो होगी। Okay, done। Okay, so I think you got the 55। Yes, you got the 55 there। Yeah, this is the way to use the formula there।
तो ओके, आपको सम इफ यूज करना है तो सम इफ या एवरेज फॉर्मूला कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। हाँ, यदि आप R1 एंड C1 यूज कर रहे हो तो यू हैव टू मेंशन द इन दिस वे। यदि आप ये वाला यूज कर रहे हो, कौन सी टेक्निक? ओके, मुझे A11 के अंदर क्या चाहिए, आंसर चाहिए। आई एम यूजिंग द फॉर्मूला R1 C1, वही फॉर्मूला इज इक्वल टू सम। बट आप R1 C1 मतलब रो एंड कॉलम। ओके, तो रो 1 फर्स्ट कॉलम टू रो 1, रो 10 फर्स्ट कॉलम, मतलब वही A1 टू A10 वही होगा। रो 1 फर्स्ट कॉलम टू रो 10 टू फर्स्ट कॉलम। ओके, वही कंसेप्ट है, सिर्फ यहाँ पर आपको रो और कॉलम मेंशन करने पड़ेगा यदि आप डॉट फॉर्मूला R1 C1 यूज कर रहे हो तब। ओके, रन द कोड। सी इन द 11 आई गॉट द 55। ओके, ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट यूज डॉट फॉर्मूला, तो यहाँ पे डायरेक्ट रेंज दे सकते हैं। ओके, चेक कीजिए। ओके, आफ्टर दैट सपोज आपको सम इफ फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सीधे व्हाट इज द सम इफ फॉर्मूला? ओके, आपको सम इफ तो हमने देखा था, राइट? सी, तो रेंज E2। ओके, यहाँ पे B1 लिख देता हूँ। B1 के अंदर मुझे एक फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज द सम इफ। वो क्या करेगा? ओके, समीप के अंदर कौन से पैरामीटर देने पड़ते हैं? समीप मतलब दैट इज योर, ओके, सी इन द एक्सेल के अंदर चेक करो, समीप इज इक्वल टू सम इफ। करेक्ट, पहले क्या होगी? रेंज होगी। मतलब क्राइटेरिया रेंज होती है, उसके बाद आपका क्राइटेरिया होता है, जिसके बाद क्या होती है? समेशन रेंज होती है। तो या दिस इज योर समी फॉर्मूला। ओके, तो ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो क्या होगा। तो ये आपकी क्राइटेरिया रेंज होगा। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा डेटा चेंज करना पड़ेगा हमें। सी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ? ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो इसे मैं फिर से ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ जहाँ जहाँ पे ए होगा उसकी समेशन चाहिए। यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A4 है, यहाँ पे A7 है और यहाँ पे A कितना है? 10 है। जहाँ जहाँ पे ए होगा उसकी मुझे क्या चाहिए? समेशन चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? सम। ओके, ठीक है, तो अब मुझे इसका रिजल्ट यहाँ पे चाहिए, मतलब मैं यहाँ पे दैट इज माय कंडीशन और मुझे यहाँ पे उसकी समेशन चाहिए। ओके, तो G1 के अंदर मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? G1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे G1 लिख देता हूँ। ओके, करेक्ट। ओके, ठीक है, G1 के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा? फर्स्ट अब यहाँ पे आपको A1 टू A10 ये आपकी क्राइटेरिया रेंज होगी, करेक्ट है? ओके, देन आपका क्राइटेरिया कहाँ पे प्रेजेंट है आपका? इस सेल के अंदर, दैट इज एफ। ओके, ठीक है, तो क्राइटेरिया आपका F1 है। ओके, मैं यहाँ पे F1 लिख देता हूँ। एंड दिस इज योर सम रेंज इज B1 टू B10, करेक्ट, B1 टू B11 तक है एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, 11 तक कर देते हैं। यहाँ पे भी 11 होगा, यहाँ पे भी 11 होगा। देन रन द चेक कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, सो यस आई गॉट द 22 आंसर। ओके, आप चेक कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने बी लिख दिया तो आपका यहाँ पे आंसर भी चेंज होगा। दैट इज अ समी फॉर्मूला, सो बट वी आर यूजिंग द VBA कोड। ओके, तो बट उसके लिए आपको A1 टू A10 क्राइटेरिया चाहिए और B1 टू B11 जो भी होगा रेंज, उसके अंदर बस कुछ नंबर चाहिए। तो दिस इज योर क्राइटेरिया रेंज, दिस इज योर सम रेंज, दिस इज योर क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है। ओके, ट्राई दिस।
तो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको करेक्टर वो सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला जहाँ पे चाहिए वो सेल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। In the sum, this is your criteria range, this is your criteria, and this is your sum range. Remember. Okay, this is your criteria A1 to A11, criteria range B1 to B11, sum range. F1 is your criteria, and G1, that means here you have to use the formula. Right. Yes. Okay, you got the error. Okay, wait. Uh, okay, range G1 dot formula sum A1 to A11 F1. ओके B1 के बाद है ना क्या हुआ है, कॉमा हुआ है। B1 के बाद कॉमा कोलन, ओके कॉमा नहीं है, B1 कोलन B11। ओके चेक करो। ओके आई थिंक यहाँ पे आपने कॉमा दिया, B1 के बाद कॉमा है आपका, वो नहीं है। देन चेक इट। हाँ बट उसके लिए आपके पास ये डेटा होना चाहिए यहाँ पे आपको। ओके डन। बट ये आपका डेटा ये होना चाहिए वहाँ पे।
ऐसे आपको डाटा क्रिएट करना पड़ेगा। A1 to A11 कुछ क्राइटेरिया लिखना है, ABC like this. This is your number and F1 is your criteria and G मतलब here you have to use the formula. Okay, try it. Okay, okay, yeah, this is the way to use the semi formula. सेम थिंग, अब हम कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ टू एक्सप्लोर द वीबीए, यस, ओके, मैंने ग्रुप पे कुछ उस लिंक पे कुछ वीबीए रिलेटेड पीडीएफ भी डाल दी है, उसे भी आप चेक कर सकते हो। ओके, सो वी हैव द वीबीए क्विक गाइड, ओके, सो विल गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके, इसे कैसे यूज करना है, वीबीए एक्सेल मैक्रोज, मैक्रोज कैसे क्रिएट करें, ओके, डेवलपर टैब कैसे ऑन करनी है, देन वी हैव द प्रॉपर्टीज, बटन, ओके, बटन कैसे क्रिएट करना है उसके लिए हमें मैसेज बॉक्स कंसेप्ट, then you have the module, right, procedure, we have seen that. Macro comment कैसे देनी है by using single quote, ये भी हमने देखा। ओके, वी हैव सीन द मैसेज बॉक्स। ओके, मैसेज बॉक्स का सिंटैक्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ओके, हाउ टू शो द मैसेज बॉक्स। जैसे कुछ बटन्स भी है, अलग अलग बटन है, बट ठीक है, यू कैन चेक इट। दिस इज द वे टू यूज द मैसेज बॉक्स। ओके, देन वी हैव द इनपुट बॉक्स। अब देखो, मतलब यूजर से हम वैल्यू भी ले सकते हैं बाय यूजिंग इनपुट बॉक्स में। सी हाउ टू यूज द इनपुट बॉक्स। ओके, सो ये मैंने लिख दिया इनपुट बॉक्स। This is the input box method. Input box मतलब to take a value from user. So in the double quote we can write the prompt. आप prompt लिख सकते हो। यहाँ पे user को क्या डालना है? So enter age. अब user को क्या डालना है? Age डालना है। ओके, ठीक है। अब ये यूजर से जो वैल्यू होगी वो हमें स्टोर भी करनी पड़ेगी किसी वेरिएबल के अंदर। तो ठीक है, आई एम यूजिंग द वेरिएबल दैट इज द एज वेरिएबल। बट रिमेंबर, यदि आप इनपुट बॉक्स यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आएगी मे बी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिफाइन योर वेरिएबल। तो एज क्या होगा, एज एज अ इंटीजर। ये आपको डबल यूज करना है तो डबल भी यूज कर सकते हैं, डबल मतलब फ्लो, डबल इज आल्सो, अदरवाइज यूज द इंटीजर, अदरवाइज यूज द स्ट्रिंग। बट ठीक है, इसका मतलब जो आपका एज वेरिएबल होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। एंड सी रन द कोड, यस आई गॉट द इनपुट बॉक्स। यहाँ पे अब आपको एज डालना है, सो आई एम यूजिंग द 23 ईयर, प्रेस हो गया। मतलब एज की वैल्यू क्या होगी, आप 23, यू कैन शो द मैसेज बॉक्स। यदि आप इसे मैसेज बॉक्स का यूज करके भी शो कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स एज। ठीक है, एक बार फिर से रन करें। ओके, पहले वो एज पूछ रहा है, सो आई एम गोइंग टू पुट हियर 45। ओके, देखो आपको जो 45 है एज अ मैसेज बॉक्स क्या होगा, शो। सो इनपुट बॉक्स, या इट इज अ कमांड टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर। चेक।
ट्राई दिस। सो यस, यू कैन गो थ्रू दिस विवेक, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, एक्चुअली इट्स अ लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो सी वी हैव सीन द वेरिएबल कंसेप्ट, हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल हियर। और अब यूए के अंदर कौन-कौन से डेटा टाइप होते हैं, पहले एक बाइट होता है, जो नंबर स्टोर करेगा 0 टू 1255, देन यू हैव द इंटीजर दैट इज़ द रेंज ऑफ वैल्यू। ओके, इंटीजर बहुत लॉन्ग भी है, देन यू हैव द सिंगल, देन यू हैव द डबल, देन यू हैव द करेंसी, देन यू हैव द डेसिमल। Okay, these are the various data types. Also we have the string, also we have the date, boolean, variant. Okay, these are the various data types available in the VBA. ओके, ये विवेक। देन वी हैव द कांस्टेंट, कि कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है, तो वी कैन राइट द कांस्टेंट। देन सपोज पाई एज ए इंटीजर या डबल एंड 4.34। ओके, जो आपको लगता है कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल मतलब वो चेंज हो सकते हैं बाद में, बट कांस्टेंट मतलब दैट विल बी द लास्ट। ओके, लास्ट तक ये यही रहेगी। तो यस, यू कैन डिक्लेयर द कांस्टेंट आल्सो। ओके, इन द वीबीए आल्सो वी हैव द ऑपरेटर, मतलब प्लस एडिशन। वीबीए के अंदर भी हम सब कुछ कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑल द थिंग्स। ओके, देन वी हैव द ग्रेटर देन। ओके, ओके, नाउ दिस इज द सिंबल। इक्वल टू मतलब to check whether the given value is same or not. Okay, this is the symbol for not equal to। okay, VBA के अंदर या Excel के अंदर not equal to के लिए होता है। Normally in the programming we have the exclamation mark and the equal to symbol, but in the VBA or in the Excel this is the not equal to। okay, remember। okay, इसे हमने यूज भी किया था जब हमने एक इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन लिया था, वहां पे हमने इसे यूज किया था। ठीक है, हम इसे थोड़ा बाद में एक एग्जांपल देख लेंगे। ओके, ग्रेटर देन बाकी तो सेम है। देन यू हैव द लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट, एंड, नॉर, और। ओके, these are the logical operator। Okay? Then we can use the directly and, nor, and the. Then we have the concatenation operator. Plus is the concatenation. Okay, addition. Okay, and is the for the concatenation। Okay, so yeah। Okay, then we have seen the EPLs, उसके बाद हमने EPLs देखा। Okay, then also we have seen the loops concept। Okay, actually loop बहुत मतलब we have the while loop, we have the do while, but okay, we just have seen the for loop here। Okay, then we have seen the string concept। string मतलब double quote use करना पड़ेगा। Okay, in the Excel, in the VBA we have to use the double quote to represent the string। सिर्फ double quote, not a single, not triple। और कुछ बेसिक डायरेक्टली फंक्शन होते हैं VBA के अंदर भी। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसको मुझे ट्रिम करना है सीधा, ट्रिम इज अ फंक्शन। ट्रिम मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस। ओके, मुझे सपोज यहाँ पे स्पेस है ऐसे। ओके, ASD। ओके, तो ये जो स्पेस है वो मुझे रिमूव करनी है, तो यस वी कैन यूज द। ये क्या करेगा, ट्रिम करेगा, ट्रिम करके, ट्रिम करने के बाद वो आंसर स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया एक्स एंड चेक इट व्हाट इज द मैसेज बॉक्स एक्स में। ऊपर का कोड कमेंट कर रन द आई गॉट द एसडी, बट ओके स्पेस नहीं है यहाँ पे। ओके, तो स्पेस इज रिमूव नाउ। चेक दिस। सो कुछ डायरेक्टली बिल्ट इन फंक्शन है वीबीए के अंदर। दीज आर द फंक्शन अवेलेबल इन द वीबीए। तो एक्सेल के अंदर भी यही फंक्शन है। यस, ट्रिम करना तो यही फंक्शन है। ओके, मतलब जो एक्सेल के अंदर है वो फंक्शन नॉर्मली यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो वी हैव द एल ट्रिम, आर ट्रिम, लेंथ इज आल्सो देयर, रिप्लेस। ओके, बहुत सारी फंक्शन आपको मिल जाएगी। डेट टाइम रिलेटेड भी वीबीए के अंदर डेट टाइम रिलेटेड भी फंक्शंस अवेलेबल है। ओके, ऑल फंक्शंस। ओके, ठीक है, बाकी एरे कंस्ट्रक्ट। जैसे कि लेंथ फंक्शन भी, आई थिंक या इट्स अ लेंथ फंक्शन टू कैलकुलेट द लेंथ। तो मतलब जो एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं वो आपको वीबीए के अंदर भी मिलने वाले हैं, डायरेक्टली वो कोडिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो रिसर्च करके भी अपन ये बाद में अगर यूज करा है तो पूरे तो नहीं कर सकते बाद में बेसिकली
हाँ, ऑनलाइन देखिए भी कर सकते हैं सर्च करके। अदरवाइज़ पीडीएफ भी होगी, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएँगे जहाँ पे आपको कौन-कौन से फंक्शन्स है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक्चुअली ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है, हाँ, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बट ठीक है। तो ऑटोमेशन के लिए जाना है तो आपको VBA जैसे कि पाई चार्ट हो गया, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, जैसे कि बटन है यहाँ पे, ओके? तो पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए, बार ग्राफ क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली VBA भी प्रेज़ेंट है, सीधे। दिस इज़ द VBA टू क्रिएट द चार्ट। चार्ट क्रिएट करना है तो ये VBA भी प्रेज़ेंट है, जस्ट यूज़ इट, ओके? डायरेक्टली हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ओके? उसको तो हमने यूज़र फॉर्म तो हमने देखा था, ओके? हाउ टू क्रिएट द यूज़र फॉर्म देन, ओके, ऐसे यूज़र फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। Okay, this is your label, this is your text box, these are the your buttons there. Okay, ये भी देखा था, also these are the option button. Okay, तो user form भी हम create कर सकते, that we have seen, that we have seen that. Okay. ओके, तो ये जो फाइल होगी आपकी, ओके, यदि आप जो आपकी ओल्ड फाइल है वही यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली आप इसे सेव कर सकते हो। अदरवाइज़ इफ यू आर यूजिंग द, इफ यू हैव क्रिएटेड न्यू फाइल, देन यू हैव टू सेव दिस फाइल एज़ अ मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। जब आप सेव करते हो तो इस फाइल को आपको क्या करना है, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक लिखना है, यूज़ करना है। ओके, यदि आप ऑलरेडी आपकी मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक है तो फिर से सिर्फ कंट्रोल एस करना है, चेंज। Okay, already आपकी macro enabled workbook है, then just save it. Just press the Control S. If you are using the new Excel file, then store save your file as a macro enabled workbook. So okay, yeah, this is all about the VBA concept. Okay, after that, now we are going to see project now. Okay, so first project that will be on the VBA base. Okay, और एक second project होगा, that will be on data analysis. So now create a new Excel file and give the name that is your project one, project first. Create new any Excel file and give the name project one. Okay, so we are going to see the first project that will be on VBA base and second project जो होगा that will be on data analysis. Okay, ठीक है.